Good evening, everyone. Once again, I am here with you with the third part of this lesson, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Right? Earlier, we have done 2 parts, and in this lesson, I am doing in 3 or 4 parts because this is a very long chapter. लेसन काफ़ी लंबा है, तो मुझे लगा एक में थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, so I decided to make it in different, I mean in 3 or 4 parts. So in this video, we would be covering third part. In the first part, there was entry of Parimal Ghosh, meeting between Parimal Ghosh and Bipin Babu. In the second part, that was right, he was trying to recall and he was making calls to his different friends. Whether it was right or wrong, मतलब वो he is trying to recall, वो याद करने की कोशिश कर रहा है कि उसको वो रांची गया था कि नहीं गया था. But everybody is saying, everybody in the sense जिससे भी वो पूछता है, दिनेश मुखर्जी से किसी से पूछता है, तो वो सब उसको ये कह रहे हैं कि नहीं. And now, what was the last part of the second part? That he had lost his appetite. He was in office, lunch time उसने अपने इसको फ़ोन किया था फ्रेंड को. He said कि yes, you were in Ranchi, I was with you. और उसको तो जैसे कहते हैं ना, भूख मर गई. He lost his appetite. और उसको लगा कि नहीं, अब तो जो है, after lunch time, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk, right? कि अब उसको लगा कि नहीं, अब जो है ना, इसके बाद तो मैं I will not be able to carry on. Carry on means to continue. ठीक है, अब मेरा दिमाग इतना परेशान हो गया कि मैं यहाँ पर बैठ के काम तो नहीं कर सकता. ठीक है, कैरी ऑन जो है, अगर कैरी के साथ आउट लगा देते हैं तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है. इन चीज़ों का ध्यान रखना है. एंड इफ आई मीन द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग माई वीडियो, राइट बेटा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. जो भी हम लेसन कर रहे हैं, लेसन इज नॉट ओनली फॉर नोइंग स्टोरी हमें आनी चाहिए, बट उसमें जो डिफरेंट हमारी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, हमने उनका ध्यान रखना है, उनको हमने सीखना है, so that we can use those concepts, we can use those language items in writing or speaking, or we should be able to understand. So carry on होता है continue, carry out होता है carry out means to take, to perform kind of, उसका meaning अलग हो जाता है. So he said, I will not be able to carry on sitting at his desk, and this had never happened in the 25 years. This had never happened, had plus third form, past perfect चुका था, ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. यार मैं तो इतने केयरफुल जो अच्छे काम करने के लिए जाना जाता हूँ पिछले 25 साल से, बट अब लोग क्या सोचेंगे ना मेरे बारे में. है ना, कंसेंशियस मीन्स वेरी केयरफुल, वेरी करेक्ट काइंड ऑफ पर्सन, जो अपना काम हमेशा अच्छे से तरीके से करे. ठीक है. Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. ठीक है, अब वो घर आ गया, 2:30 बजे घर आ गया. He is trying to recall पूरी जो उसकी, मतलब he is trying to gather his wits, पूरी चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है. And in this part there is entry of one more character, that is Chunnilal. Chunnilal is also Bipin Babu's friend. जो Chunnilal है वो Bipin Babu का बचपन का फ्रेंड है, right? And who had lost his job. Chunnilal जो है अपनी जॉब खो चुका है और थोड़ा सा वो परेशान भी है. जॉब खोएगी तो उसकी परेशानी भी होगी. अब परेशानी होती है तो हम क्या करते हैं, वी गो टू, आई मीन वी ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम द पीपल हु आर क्लोज टू अस, अपने दोस्तों से, अपनी जान पहचान वालों से. ठीक है, अपने रिश्ते, किसी से, बहन भाई से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, और हमें करनी भी चाहिए अगर हमारे हाथ में है ना, क्योंकि लिटरेचर इज फॉर लाइफ, इसलिए हमें ये सीखना है यहाँ से. ठीक है. Back home at 2:30, Bipin Babu lay in bed and tried to gather his wits. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. उसको ये तो पता है कि कभी जैसे सिर में चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो उसको मतलब किसी को कुछ भूल सकता है, लेकिन उसको ये लग रहा है कि बाकी सब कुछ मुझे याद है, खाली रांची ट्रिप नहीं याद है. ऐसा कैसे हो सकता है. इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल. ठीक है, इंस्टेंस के साथ वैसे एक इलस्ट्रेशन वर्ड भी होता है, उसका मतलब भी एग्जाम्पल होता है. और इंस्टेंस के साथ एक मैं और वर्ड बता देती हूँ, दैट इज इंस्टेंट. इंस्टेंट उसका मतलब अलग होता है मीनिंग, और इंस्टेंस का अलग. आपने ये सब ध्यान में रखना है. ठीक है. इंस्टेंट इडली बनाते हैं ना, मैगी इन 2 minutes. Okay, a single instance of someone, okay, and a fairly recent and significant one.
He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. कह रहा रांची तो मैं जाना चाहता हूँ था, ठीक है, रांची में गया, वहाँ मैंने इतने सारे काम किए, घूमा फिरा और मुझे कुछ भी याद नहीं है. How is it possible? He is saying that is utterly impossible. That is utterly impossible. Impossible. ये तो बिल्कुल कह रहा बिल्कुल भी नहीं याद है. इसमें एक और वर्ड बताए, इम प्लस पॉसिबल है, ये याद रखना है. इम इज क्या है, प्रीफिक्स है. अगर पार्ट 2 अगर आपको याद है, वहां पर हमने क्या किया था, डिस प्लस कंफर्ट, डिसकंफर्ट, ठीक है, उसके साथ हमने एट ईज भी एक वर्ड किया था. आपको हर लेसन इतनी डिटेल में करना है. वंस यू आर डन विद द लेसन यू मस्ट बी एबल टू रिकॉल एनीथिंग लाइक दिस. हमने कौन सी वोकैबुलरी की थी, कहाँ प्रीफिक्स का यूज किया था, कौन सा टेंस था, राइट. इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, राइट. इम्पॉसिबल. सो ही सेइंग दैट इट वाज अटरली इम्पॉसिबल. कह रहे नहीं हो सकता, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. बेपन बाबू न्यू. ओके. इतने में भी वो सोच ही रहा है, घर पे उसका सर्वेंट आता है कि तुम्हारा जो फ्रेंड है चुन्नी लाल आया. अब उसको तो अपनी परेशानी में कह रहा नहीं चुन्नी लाल को बोलो मुझे पता वो किस लिए आया है, ही मस्ट हैव कम टू मी टू आस्क. पर उसको बोलो कि अभी मैं उसको बिल्कुल नहीं मिल सकता. अभी क्या कह रहा, अगले पूरे वीक नहीं मिल सकता. बट अचानक से उसको याद है कि नहीं रुको चुन्नी लाल को बोलो मैं आया. सो उसको लगता है कि चुन्नी लाल से मैं पूछता हूँ कि उसे कुछ याद है कि मैं 58 में कहाँ था. सो राइट, चुन्नी लाल इज हिज चाइल्डहुड फ्रेंड. Okay, Bepan Babu knew what Chunni had come for. Chunni Lal had been at school with him. Schoolmates से वो, school के friends थे. He had been having a rough time lately. Lately means होता है recently. English देख लो, इसके कितने late का मतलब अलग होता है. Lately means recently. आजकल उसका थोड़ा सा tough time चल रहा था. Lately means and had been coming to see him about a job. Bepan Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. बट चुन्नी kept turning up like a bad penny. बेपन बाबू ने इसको बहुत बार बताया भी था कि इट इज़ नॉट इन माई हैंड्स, कि मैं तुम्हारी जो हेल्प नहीं कर सकता, बट वो फिर भी आता रहता था, राइट. बेपन बाबू sent a word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. Bepan Babu hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bepan Babu appear, he turned hopefully. जैसे वो बेपन बाबू नीचे है, उसको लगा कि शायद ये मेरी दोबारा से वापस आ जाए. Bepan Babu did not beat about the bush. Did not beat about the bush क्या होता है? Beat about the bush. मतलब उसने अपनी कोई बात नहीं घुमाई, सीधे उससे बात की. मतलब उसको ये तो याद ही नहीं कि मतलब जॉब के लिए आया है. Listen Chunni, I want to ask you something. You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back. तो याद करो जरा, पीछे अपना दिमाग घुमाने की कोशिश. Throw your mind back. ठीक है, ये सेंटेंस याद रखना है. And tell me, did I go to Ranchi in 58? Chunni said 58. I must have been 58 or is but yes, you are sure that I did go to Ranchi. Chunni's look of amazement was not unmixed with worry. जब उसने बात की, चुन्नी लाल ने बिल्कुल ऐसी कोई हैरानी नहीं, राइट, उसकी हैरानी हुई. डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन टू. कह रहे तुम्हें मतलब तुम्हें लग रहा है, तुम्हें कोई डाउट है कि तुम नहीं गए थे. सो दैट मीन्स चुन्नी लाल इज ऑल्सो गिविंग ए काइंड ऑफ confirmation that yes, you were in Ranchi, you went to Ranchi. Chunni sat on the sofa, fixed Bepan Babu with a long hard stare and said, Bepan, have you taken to drugs or something? उसने उसको बिठाया, कह रहा क्या हुआ तुमने कोई दवाई वगैरह खा ली है, तुम्हें जो याद ही नहीं है. अब तो उसको लगा बेपन बाबू को कि नहीं यार, समथिंग इज रॉन्ग विद मी, राइट. दिस इज हाउ समटाइम्स वी प्ले विद द लाइव्स ऑफ द पीपल. लोगों की पंखे के बिना वीडियो चला रही हूँ, बना रही हूँ, इसलिए इतनी पसीना आ रहा है. I know that old friendships don't mean much to you, but at least you had a good memory. So this sentence is very important, right? इसमें जैसे कहते हैं ना, पूरी लेसन का सार इसमें वो है. You had a clean record where such things were concerned. I know that old friendships don't mean much to you. ठीक है, कि मुझे पता है कि तुम्हें जो ओल्ड फ्रेंडशिप्स हैं, पुरानी दोस्ती हैं, वो तो तुम्हें नहीं याद रहती हैं. वो एक तरह से पॉइंट मार रहा है कि मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी. उसको अच्छे से बंद कर दो. मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी, बट तुमने मेरी फ्रेंडशिप का कोई मतलब मीनिंग नहीं था तुम्हारे लिए. लेकिन तुम्हारी मेमोरी तो अच्छी है,
तुम्हें ये कैसे भूल गए? Bapan Babu had to turn away from Chunni's incredible stare. Do you remember what my last job was? asked Chunnilal. चुन्नीलाल ने कहा कि तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी? Of course, you worked in a travel agency. You remember that? You don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi. कह रहे तुम्हें याद नहीं मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता, मैंने ही तुम्हारी टिकट बनाई थी. I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. Past continuous. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? कह रहे तुम्हें सब कुछ भूल गया. फ्रेंडशिप तो भूले थे, तुम्हें ये सब कुछ भी भूल गया. Whatever is the matter with you? You don't look too well, you know. Bapan Babu sighed and shook his head. ओह, वो जिसको कहता अरे यार ये क्या हो क्या गया मुझे, क्यों नहीं मुझे? I have been working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. उसने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए. ठीक है. और now there is a one more character, that is Dr. Chanda. So okay. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience. But I have one suggestion. I don't know if it will work, but it is worth a try. It can do no harm. उसने डॉक्टर चंदा के पास गया, उसने कहा कि विपिन बाबू मुझे तो ये तुम्हारा केस ही अलग लग रहा है, ऐसा तो मैंने कभी, बट फिर आई कैन ट्राई विद योर केस. एक काम करो, तुम दोबारा से रांची जाओ, जैसे वो हिंदी मूवीज में नहीं दिखाते हैं, दोबारा से रांची जाओ, शायद तुम्हें वहां जाके वो सारे इंसिडेंट तुम्हें जो है वो सारे याद आ जाए. Bapan Babu leaned forward anxiously. As far as I can make out, said Rosina, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. कह रहा मुझे लगता है तुम गए होंगे रांची, लेकिन पूरे का पूरा जो इंसिडेंट है वो तुम्हारे दिमाग से स्लिप आउट हो गया है. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. Right? और उसने ऑफिस अपने कॉल किया कि मुझे कुछ काम है, जिनसे काम करवाना था उसको इंस्ट्रक्शन दी. Then he got ready to go to Ranchi. क्योंकि उसको ये परेशानी हो रही है, डॉक्टर ने जो सजेशन दिया उसको करना पड़ेगा. So now he is planning again. He is going to Ranchi to know कि शायद उसको ये सब कुछ याद आ जाए. So this is part 3. Very soon I will be with the part 4. Okay. Thank you. Take care. Bye bye.